Hello everyone, Assalamu alaikum. Today's topic I think is a little bit interesting for us, that firm's shutdown point. So very interesting question, it comes in your question and your different examination, that how can we determine the firm's shutdown point and what is basically the condition at which the firm will shut down their production. They do not want to produce more. So to solve this problem, so we have to do some review of the previous some curves, a very basic idea. And the idea is this: number one, we discussed that when we have cost, so we have the total cost is equal to the fixed cost and variable cost. Is very basic elementary idea. और फिक्स कॉस्ट में आपको पता है कि वो कॉस्ट जो आपकी जो फिक्स होती है, इक्विपमेंट्स हैं, ये हैं, सारी चीज़ें हैं जो आपने वन टाइम फिक्स कर दी, जिसका अभी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ, a certain cost you have been fixed. And now that's mean the cost is relevant with the variable cost. That's mean how many items, how much production you are doing. So the variable cost is basically dependent on this thing. So if we will combine these two costs, so it becomes total cost. So what will be the curve? Curve says that this is basically variable cost. This is the fixed cost. क्योंकि वो नंबर ऑफ आइटम से चेंज ही नहीं हो रही हो, तो आपने फिक्स कर दिया, आप 1000 आइटम बनाए, 1 लाख बनाए, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट. अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो आपकी फिक्स हो गई है. 1 million rupees you have been invested, so that's mean it has been done. But now that if you are producing the 100 items, so you are saying that my expenditure is 50,000 and then 70,000 rupees, then 1 lakh, then 150. So this is the basic variable cost. लेकिन अगर इस वेरिएबल कॉस्ट में मैं हर आइटम में डेफिनेटली मुझे फिक्स कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट करनी है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो बिल्कुल इस तरह ही होगा, इसका पैरेलल होगा वेरिएबल कॉस्ट के. अगर मैं इसको और मजीद पैरेलल बना दूं तो, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट को अपने ऊपर रख के चलेगा. सो ये तो जस्ट हमारा एक आइडिया था. अब हमें यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर क्या देखना है. So firm shutdown point is not basically directly related with the total cost or variable cost. We have to discuss the average cost. Because average cost, what is average cost? The sense of the average cost is basically per unit cost. When we analyze the data in the per unit cost, it becomes more meaningful. So what is happening? This is the basically graph. अगर आप ये ग्राफ समझने में कामयाब हो जाते हैं जब मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप आराम से फर्म्स की शटडाउन सिचुएशन को समझ सकते हैं. मेरा कहना ये है कि if the item is increasing, तो definitely the cost will decreasing. Average cost आपने देखा था कि U shape कर्व होती है, decreasing initially and then it will touch the minimum and then again it will increase. ये चीज़ हमने पहले देख ली है. But when we are discussing there are two different cost, तो इसका मतलब क्या होगा कि average variable cost different होगी और एवरेज कॉस्ट डिफरेंट होगी. डिफरेंट से मुराद कि ये एक ही सिम में बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन इनकी जो कर्व एक का ऊपर होगा और एक का नीचे होगा. वेरी सिंपल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो भी यू शेप होगा और वो लुक लाइक दिस होगा. लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो आपका इसी सिम में बिहेव करेगा, लेकिन उससे ऊपर होगा. थोड़ा सा इसमें इनिशियली ज़्यादा फासला होता है. तो ये एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. इन दोनों बात को समझने की हमें सख्त ज़रूरत है. अब इसका भी एक बॉटम है और इसका भी एक बॉटम है. दोनों के बॉटम में थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बॉटम पहले आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल टोटल कॉस्ट का बॉटम थोड़ा सा आगे आएगा. इन बातों को समझने की ज़रूरत है. अब मार्जिनल कॉस्ट इनके बॉटम से टच करता हुआ जाएगा और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है. So if you can understand this graph, so you can easily find out the firm's shutdown point and what is the rationale of the firm's shutdown point. In which we are saying this कि
यहाँ पर आप प्राइस ले रहे हैं और आपने कॉस्ट भी ले रखी है। कॉस्ट से मुराद आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी आ रही है, एवरेज कॉस्ट भी आ रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी सारे नंबर्स यहाँ आ रहे हैं और वो प्राइस भी आ रही है। बिकॉज क्योंकि ये एवरेज है तो ये नंबर मोर और लेस प्राइस के बराबर ही होंगे। और मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि शार्प होती है तो वो थोड़ी ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं। अब इस सिचुएशन में व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर सेइंग दिस कि अगर फर्म अपनी प्राइस को यहां रखे हुए है, समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, अपनी प्राइस को यहां रखे हुए हैं, तो इट्स मीन कि वो मार्जिनल कॉस्ट को यहां से कट कर रही है। और अगर यहां से कट कर रही है तो वो एक सिग्निफिकेंट आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रही है। और प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो आइटम है, ये जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है। यानी अगर इतना उसको मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है, उसकी प्राइस इतनी है, तो वो आराम से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही होगी। अब अगर गौर से समझने की बात है कि प्राइस क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बॉटम से टच कर रही है, और अगर हमारी सिचुएशन ऑफ प्राइस ये बन जाती है, प्राइस 1, ये नॉट थी, प्राइस 1 थी, ये बन जाती है, तो इस सिचुएशन पे व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर बेसिकली अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट। और बिकॉज के आप इस टाइम जो एवरेज कॉस्ट है उसके बराबर अपनी कॉस्ट को रखे हुए हैं। इसका मतलब आप, सो नाउ यू आर बेसिकली इन द ब्रेक इवन सिचुएशन एंड यू आर सेइंग दैट कि जितनी कॉस्ट मुझे एवरेज लग रही है एक यूनिट पे और मैं उतनी ही प्राइस चार्ज कर रहा हूं, तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन में रन कर रहा हूं। बट मैं प्रोडक्शन जारी रखूं और होप फॉर द बेस्ट रखूं और आगे काम करूं। अगर मैं प्राइस को यहां चार्ज करता हूं कहीं इससे नीचे, तो उस सिचुएशन में मेरी बेसिकली एवरेज कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही। तो अब मैं एक स्पेसिफिक लॉस पे जाना शुरू हो गया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी अगर यहाँ पर कहीं प्राइस है, मिसाल के तौर पर इधर प्राइस 2 मिसाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने जो मटेरियल लगाया, जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट लगाई, मिसाल के तौर पे अगर मैं चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैंने प्लास्टिक पैकिंग ली है, मैंने शुगर ली है, मैंने मिल्क लिया है, मैंने चॉकलेट, वो मेरे जो रॉ मटेरियल लिया है, मैंने जो वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, वो मेरी यहाँ पर इस वक्त है प्राइस उस इधर है, और मैं अगर मिसाल तौर पर यहाँ प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं उससे ऊपर ही चार्ज कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ही ले रहा हूँ। हाँ, टोटल कॉस्ट यानी कि जो मैंने और मज़ीद चीज़ें फिक्स कॉस्ट लगा रखी हैं, लगा रखी हैं, वो उससे मैं नीचे जा रहा हूँ। तो अभी भी सिचुएशन है मेरे पास कि मैं इम्प्रूव कर जाऊँगा और एक सिचुएशन आएगी कि मैं अब अपनी पूरी कॉस्ट कवर कर रहा हूँ और देन फिर प्रॉफिट रीजन में दाखिल हो जाऊँगा। तो यहाँ पर भी अगर एवरेज कॉस्ट नीचे भी वो जाए तो प्रोडक्शन वो अपनी स्टॉप नहीं करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखेगा और वो ये कहेगा कि मुझे जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है मैं उतना तो मैं कवर कर पा रहा हूँ। यानी कि अगर मेरे मिल्क में, चॉकलेट में, पैकिंग में, लेबर में, इन सबको देने में जो मेरे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं और मेरी प्राइस से वो मेरे सारे पैसे वापस निकाल रहे हैं, दैट्स मीन इट्स फाइन कि मैं मज़ीद और एफर्ट करूँ, मज़ीद मार्केट कैप्चर करूँ और मज़ीद एफिशिएंट बनूँ, एंड देन आई कैन बी अर्न द मोर एंड आई कैन गेट इनटू द प्रॉफिट रीजन। बट व्हाट इज द सिचुएशन where the production manager will think that the firm should not produce more, below this price the firm has to shut down. So this is the situation we discuss here. If the price is equal to average variable cost,
अब क्योंकि हम ये पूरा शॉर्ट रन फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं तो ये हो जाएगी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसको भी आप SAC और SAVC कर सकते हैं। सो अगर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को अपनी प्राइस से कवर नहीं करेगा तो आफ्टर दिस पॉइंट, बिलो दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे भी वो फर्म को रन करेगा, मतलब बिलो दिस पॉइंट बेसिकली he has to shut down the production. So short run supply curve of the firm will be like this. ये जो पॉइंट है, ये सारा जो हमने, और आप नोट करें कि ये बेसिकली मार्जिनल कर्व का पॉजिटिव एरिया है। तो ये भी एक बड़ा की पॉइंट है कि द पॉजिटिव स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर लें इसको क्योंकि शॉर्ट रन में रन कर रहे हैं आप, इट इज़ द बेसिकली द फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द शट डाउन पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल रखता हूँ ताकि उनको और आसानी समझ में आ सके कि ये तो ग्राफिकल और थ्योरेटिकल बातें हैं, हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे, हमारे पास फंक्शन होंगे तो हम मैथमेटिकली कैसे उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि होता क्या है। फर्म एक प्रोडक्शन फंक्शन फॉलो कर रही होती है स्पेसिफिकली। अब मैं क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको K0 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जब 10 मशीनरीज कर ली है तो उन्होंने अपने आप को फिक्स कर लिया। अगर उन्होंने ये कर लिया है तो मैं फ़ौरन अपने प्रोडक्शन फंक्शन को सॉल्व कर लेता हूँ L के लिए। अगर मैंने L के लिए सॉल्व किया तो मेरा ये Q डिवाइडेड बाई K0 हो गया, मैं इसको K0 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने 0.25 को पावर ले लिया 1/4, K को इसको ऊपर लेके चला गया तो ये -3/4 हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नाउ वी आर जस्ट सिंपल अप्लाई होल पावर 1/4 ऑन बोथ साइड। जैसे मैंने 1/4 नहीं, सिंपल 4 आएगी, देखें 4 लूँगा तो 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल L बच जाएगा। और सिंपल यहाँ पर L बच गया, और जब मैंने यहाँ पे लिया तो ये पावर 4 हो गया, और मैंने 3/4 को जब 4 से किया तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये -K⁻³ हो गया। ये सिंपल मैंने अपना एक L की वैल्यू निकाल ली कि L = Q⁴, और कैपिटल Q के फिक्स है, मैं K0 कर देता हूँ उसको, और उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी उस पर -³ है। अगर हम इसकी वैल्यू डाल देते लेट्स से 1 2 3 10 15 तो एक दफ़ा ये कैलकुलेट हो जाती, तो बस फिर ये अपनी वैल्यू के साथ चल रही होती। लेकिन हमने इसको जनरल रखा है ताकि आप कोई भी फिक्स कैपिटल लेके उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि हमें कॉस्ट फंक्शन डेवलप करना है। और कॉस्ट लाइन आपके पास क्या बन रही है, WLRK। अगेन मैं कहता हूँ कि ये K जो है मैंने जनरल लिया था, लेकिन अब मैं K0 कर देता हूँ। K0 इज शोइंग दैट कि आपका कैपिटल फिक्स है। अगर मैं इस K0 में L की फिगर डाल दूँ डेट विल शो दिस के आपका जो भी फंक्शन बनेगा वो आपका कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। मैंने ये पूरी की पूरी फिगर उठा के यहाँ डाल दी, W से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो मेरा ये बन गया कॉस्ट फंक्शन। ये मेरा जो बन गया कॉस्ट फंक्शन। अब नाउ आई वांट टू टेक द मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज कि जब मैं मार्जिनल कॉस्ट लूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, और जब मैं मार्जिनल कॉस्ट लूँगा तो मैं एवेल्यूट कर सकूँगा सिचुएशन को। और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व के लिए जब मैंने इसको मार्जिनल कॉस्ट को जब मैंने जैसे इसको Q से लिया तो आप गौर से देखेंगे ये पूरी टर्म 0 हो गई, और इसमें ये और ये दोनों टर्म जो थी यानी कि W उसको नीचे ले जाएंगे तो K/³ हो जाएगा, ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर हो गए। एंड जब मैंने Q⁴ का जब लिया तो 4Q⁴ हो गया। दिस इज़ बेसिकली द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब आप गौर से देख सकते हैं कि क्योंकि कैपिटल आपका फिक्स है, आपकी जो कॉस्ट डिपेंड कर रही है वो सिर्फ Q और W पे कर रही है। अब वेज रेट ले लें क्योंकि लेबर बढ़ा रहे हैं आप खाली, और कितनी प्रोडक्शन चाहते हैं उस पर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज सिचुएशन ये कहती है कि मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कराओ और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बात है तो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज सिचुएशन में आपकी जो भी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आई है इसको जस्ट P के बराबर कर दें। देखिए मैं ये जो एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स के अंदर भी इस तरह की एग्जाम्पल आती हैं, एग्जाम में भी आती हैं कि वो आपको फंक्शन देके बोल सकता है कि मुझे इसका फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व बताइए। So that's why it can be important for you, and on this pattern you can solve so many questions as well. So
if just simply we are equating to this thing, so supply curve basically होता है Q से, तो ये तो P के बराबर है इस वक्त, ये P का फंक्शन बनना है, हमें P का फंक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए Q, और Q शुड बी द फंक्शन ऑफ P, ताकि पता लगे कि फर्म का सप्लाई कर्व बनता है। और ये याद रखिए कि सप्लाई का क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और P आपका फिर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सो P इज इक्वल टू दिस एंड सिंपली वी वांट, तो मैंने इस Q को यहाँ छोड़ा और ये तीनों चीज़ें मैं वहाँ ले गया। जब मैं यहाँ ले गया तो P मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड हो गया, Q4 डिवाइड हो गया P से, और W ओवर के क्यूब रिवर्स हो गया, के क्यूब ओवर W हो गया, और यहाँ सिर्फ के क्यूब बच गया। अब अगर मैं सिंपल क्यूब पावर ले लूँ, होल पावर क्यूब ले लूँ ऑन बोथ साइड, तो सिंपल यहाँ से 1 ओवर क्यूब, यहाँ से मैं 1 ओवर क्यूब ले लूँ, तो यहाँ से ये क्यूब बच जाएगा। लेकिन याद रखिए कि P और 4 और W इन पे जो पावर आएगी 1 ओवर 3 आएगी, और ये देखें 3 का ये सिर्फ K आ जाएगी, और ये K नॉट है, हर जगह K नॉट यूँ है क्योंकि ये फिक्स है, और ये K नॉट है, या अगर ये 100 है 100 सिंपल से मल्टीप्लाई करेगा। एंड यहाँ पर जो आप Q निकालने में कामयाब हुए, बेसिकली ये आपका QS है सप्लाई कर्व, और मैं SR बना देता हूँ, यानी कि ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है। सो यू राइट वेरी इजीली शॉर्ट रन फ्रॉम सप्लाई कर्व, एंड यू नो डैट कि व्हाट विल बी सिचुएशन, यानी P इज इक्वल टू SAVC। अगर एग्जाम में आती है या आपको असाइनमेंट मिलता है तो आप इजीली यू कैन सॉल्व इट के what will be the firm shutdown point. Number 1, what will be the short-term marginal short-term supply curve in positive area of the short-term marginal cost, number 1. Number 2, and then what will be the mathematical example, this is the solution. So thank you very much for joining us, and please subscribe our channel for more economics and statistics videos. Thank you.